Right to life and personal liberty. It is a fundamental right enshrined in the Constitution of India and holds a major meaning in the life of citizens, whether they realize it or not. When courts have interpreted this article, they argued that right to life doesn't only mean animal existence, but a life with dignity. When you say life with dignity, it involves all aspects of life, which makes it meaningful and worth living. From freedom to rise to the highest levels of consciousness and all necessary materialistic requirements to support humans to rise to their optimum limits, dignified life has a widespread meaning and interpretation. Although humans make their own destiny through their actions, it is the mandate of the state to provide necessary facilities for the fulfillment of that destiny. And why should state not fulfill that mandate? It is their duty according to the socialist principle on which the Indian state works. Also, the facilities provided by the state help people to develop and grow, which is in turn helps the country's economy and society. Among all the responsibilities expected from the state, that of security of life of the citizen is the most basic. The dignified life can only be built when there is life. In the recent incidents of drowning of the 3 students in the coaching institute's basement in Delhi tells loudly about the sorry state of affair of the fundamental rights of the citizens. Now when tragedy has occurred, blame game has started between the political parties and loopholes are now being filled up by the government to shift accountability on someone else. Instead of solving the core issue, again the government started doing the same thing which they have a mastery in doing to show that something is happening, which is equivalent to solving the peripheral issues, not the core issue. Arrest of the SUV driver is an example of this culture of diverting attention from the core issue towards the periphery. Now when 3 lives are lost, the core issue with the government should be to focus on creating a precedent so that the incidents should never repeat again. But what about those who are still living? Are they living a dignified life according to the fundamental rights of the Constitution of India? In Rajendra Nagar and Patel Nagar and Karol Bagh, a 3 BHK flat is converted or adjusted to accommodate 6 students by creating cardboard partition where all 6 share the same kitchen and 2 toilets. And where there is no privacy of the students because all the time you are exposed to another human living with you. Will you call this a dignified life? And why this happens is because of the simple reason that by creating more divisions in a flat, owner earns more money through rents and it is cheaper for all students. The food which the student eat cost 70 to 80 rupees per meal, which is about 120 to 140 per day. Proliferations of kitchens and dhaba has created good business in old Rajendra Nagar, but quality control and quality check by the government is not a priority. This is again against the principle of a dignified life. Apart from the regulation of the coaching institutes, the demand of the students are very simple. They are not demanding to create any new law, but the most basic demands relate to the already established law and their proper implementation. It may be related to the provisions of the usage of basement or the policies related to rent and brokerage or the provisions related to living in a flat or quality checks for food. If the state is unable to implement the provisions of law properly, it is akin to snatching the right of life and the life of dignity of the students. In this episode, let us listen from UPSC aspirant about the progress made on these fronts and the response of the government. So Shivam, how are you? I'm good. How are you, Mayank? I'm fine. This is the second episode. I would say another episode on the same matter. तो पहले तो मैंने JNU के एक स्टूडेंट को बुलाया था who have told about their perspective. I wanted to know the perspective of the aspirants
क्योंकि यहाँ पे जो मेन इशू है वो एस्पिरेंट्स के साथ है. Exactly. Those aspirants who are living here in old Rajendra Nagar, new Rajendra Nagar and Karol Bagh. Yeah. And what I have heard that you guys have made too much progress as far as the talking with the government and communication with the government Exactly. go. So I would like to know what is the present scenario of this whole movement. See, as you know, this tragic incident that happened on 27, that was very horrible to all of us because we didn't expect this to happen, that too in a library. Because of course our life is so fast over here. बहुत Could you be a तेज. little louder? Of course our life is so fast and हम लोगों की चीज़ें यहाँ पे बहुत जल्दी होती हैं and lot of task a student is involved into it and lot of thing is there. But ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ इससे बहुत ही एक इम्पल्सिव रिएक्शन और एक कह सकते हो आप एक नी जर्क रिएक्शन हुआ अमंग द एस्पिरेंट्स बिकॉज डेली रूटीन प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं वो तो वो कर ही रहे थे. यूजुअली वो डेली रूटीन प्रॉब्लम्स लॉजिस्टिक्स का, रेंट का, इंटर टेनेंट एंड ओनर कॉन्फ्लिक्ट, लॉजिस्टिक्स इश्यूज लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न ना होना और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डिससैटिस्फैक्शन विद द फैकल्टी एंड देयर इज नो रिफंड पॉलिसी फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो लॉट ऑफ कल्मिनेशन ऑफ डेली प्रॉब्लम दैट कीप्स an umbrella above the student's head in Karol Bagh and ORN. This is so persistent and clearly visible. So वो tragic incident होने के बाद we started protesting. Of course, it's quite visible. The national media has covered that. उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे सीखा प्रोटेस्ट से कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ना नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके हमें काम निकालना है बिकॉज अल्टीमेटली जो डिमांड्स है काफ़ी बेसिक है और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना वो सोशलिस्ट वेलफेयर प्रिंसिपल है कंट्री का, देश का, एंड ऑल ऑफ अस इज अवेयर अबाउट दैट, राइट. सो हम बस उसी चीज़ों पे चल रहे हैं जो थोड़ा हक बनता है स्टूडेंट कम्युनिटी का. बिकॉज अगर आप जेनरस नहीं है स्टूडेंट कम्युनिटी के तरफ तो एक चीज़ निकल के आती है कि यू आर बीइंग कमर्शियल with the student community and there has to be a degree of commercialism that you can play with student community, which has of course come down now, which is because of a hit. The exposition of the problems of student has taught many people about the the issues which student face and there is nobody to address them, not even government, because you guys are not voters here. Exactly. तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि there has been a political administrative nexus that is being played in ORN with respect to ORN and Karol Bagh and a lot of adjacent student areas because we bring instant economic change. Exactly. We bring instant socio-economic change to the place. Because we carry ourselves from distance, we come from remote villages, we might come from different cities. So we come with a plan that we are going to invest in coaching, education and things like that. Of course, it's not a permanent settlement for us over here. That's why we tend to spend little more on us. Because the project of us to stay over here is maybe 1.5 years or maximum 2 years, right? So our entire project ends in 2 years. And in that way, the student batches keeps rotating because there is multiple batches relaunch from the coaching institute. Of course, they are playing commercial, right? So they make money out of it, right? So education sector has gained a lot of commercialism and attitude लोगों का उसमें बदल गया है कि ठीक है भाई पैसे कमाने हैं, बैचेस रिलॉन्च करने. तो उस वजह से क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमी की इकोसिस्टम बहुत स्मूथली चल रही है बट जो स्ट्रगल है स्टूडेंट का वो परसिस्टेंट नहीं हो पाता बिकॉज एक बैच आती है स्टूडेंट की, वो एग्जिट कर जाते हैं 1.5 साल में. तो 1.5 साल में जब तक ये माइंड मेकअप होता है उनका कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है तब तक उनके एग्जिट का टाइम है. Sometimes even 9 months, not even 1.5 years. Exactly. 9 months. Exactly. One year is max, and there is huge chunk of student who completely rely on coaching, and the moment coaching ends, they take next train to their hometown. Yes, and the next batch comes up. Next batch. For our viewers, I would like to tell the basic difference between what happens in universities like JNU and DU versus what are the problems with aspirants here.
one of the thing which you have highlighted is those guys live there for 3 years at least Exactly. for completing their bachelor's degree, then their master's degree, and then PhD if Exactly. they want to continue. So they are there for a larger period of time. Exactly. So they can make unions, they can demand from government a reduction of fees, reduction of hostel fees, tuition fees, and other facility. Exactly. Which is not the possibility with UPSC aspirant. Reason being, you never know for how much time you're here. Sometimes you come for the GS classes that runs for 9 months, 10 months, but sometimes you only come for optional classes that runs for maximum 5 months and 5, you're 6 gone. months. It might go stretch to 8 to 9 months. And sometimes you come here only for test series, Exactly. for a small shorter period of time, because you have to Everything write of this mains. preparation has a lot of value. Lot of value, and then you are willing to pay that extra amount also every time you come here, because what is there in your mind is that you have to be here for a shorter period of time. Exactly. And even if I have to bear something, it doesn't matter, because we are here for the shorter period of time. And that is something, that is the lacuna from where the commercialization starts. Exactly. Where the students cannot oppose that commercialization. Exactly. And because of that, they cannot form a union or anything which is there outside. Exactly. See, there is no regularity of this preparation, because if you see UPSC preparation in a student's life, it is not the part of regular education. If you see a coaching, if you see It's a college, disruption. exactly, it might be a disruption that it might be a lost opportunity that somebody can make it. Somebody learns from the preparation and they ultimately go where they were actually going before the preparation started. So the college student usually go to the college and school, but that is a part of their regular education. Yeah, they get Coming to degrees out of it. exactly coming to UPSC coaching, such as general competition examinations and things like that, it is not a part of our regular education. Exactly. We have taken a bet, right? Yeah, that's a bet. Yes. Exactly, right? We have taken a bet, right? We come from various stages of family. Somebody might be from middle class family, somebody might be from lower middle class family, somebody might be from elite family, right? And you see the rent in ORN and Karol Bagh ranges from 10,000 to 15,000, goes to 30,000. I know people in person who pays around 35K staying alone, right? So taking everybody in the consideration, what I'm trying to tell you is the attitude of people in Karol Bagh and Delhi, ORN, the attitude is like कि भाई अपन रेंट से जी लेंगे, एंड वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है. एंड आई विल आल्सो टेल यू मोर ऑन दिस कि दे हैव स्टार्टेड काउंसलिंग देयर नेक्स्ट जनरेशन कि रेंटल बिजनेस ओआरएन में ऐसे चलाई जाती है. Exactly. वो अपने बच्चों को बता रहे हैं. But they have gained a lot. They have made big houses Exactly. in Gurgaon They and have- other places. Exactly. Many of them have It's left evident. to Western countries just by earning from the rent income. Exactly. It's evident. Clearly, it's evident. So, यहाँ पे जो पॉलिटिकल नेक्सस है, उनको ऐसा लग रहा है कि इनका स्ट्रगल परसिस्टेंट नहीं हो पाता, बिकॉज ये जनरल कंपटीशन के लिए आते फिर चले जाते हैं. और आई ऑल्सो थिंक there's a lacuna in the attitude of people living here, because दिल्ली से सबसे पहले फ्रीबी स्टार्ट हुई थी. अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो आई थिंक freebies as a culture is unfortunately in a sync with livelihood of people, especially what I can feel in Karol Bagh and ORN, right? मुझे ऐसा लगता है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में. तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एंड गवर्नमेंट एक्चुअली शुड communicate with the locals over here that आप बाहर के भी बच्चों को अपना समझें, आप ऐसे कमर्शियलिज्म ना दिखाएं उनके प्रति, because you know the issue is government का जो वोटर बेस है वो यहाँ पे ओनर्स हैं. exactly. So for government to do anything which goes against the interest of the owners, It will politically give them setback. yeah, it's a exactly. political society, you can say. So how is the communication with the government going? I have heard that you have to make a delegation which is going to reach to the Honorable Lieutenant Governor. Yeah. And how that preparation is going? Actually, once the protest started on 27, we have actually learnt a lot from the protest itself. एक टाइम में तो प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की भी कोशिश थी by various elements which is widely known to everybody.
that might be a student union of various colleges and things like that, because they know that issue is grave, issue बहुत बड़ा है. और मुझे लगता है, मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो उन्हें विकीपीडिया पेज बनाना था करोल बाग के इशू पे, और उन्हें अपना नाम चमकाना था उस पे कि भाई हम फेस थे, हमने इसको गैल्वेनाइज करा, हमने इसको पॉलिटिसाइज करा, जो भी करा हमने इसकी सोल्यूशन ढूंढ के यूपीएससी के स्टूडेंट्स को दिए. बट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में ये इशू खुद में इतना बड़ा है, ये इशू खुद में इतना बड़ा है कि हमें एक्सटर्नल सपोर्ट की उतनी ज़रूरत भी नहीं है. 1.5 लाख स्टूडेंट तो यहाँ पे ऐसे ही हैं. अगर हम 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन करें तो 1.5 करोड़ रुपए तो हम ऐसे तीनों बच्चों के लिए दे सकते हैं, विच इज अ गुड अमाउंट बाय अ फंड, राइट. उस पर भी हमारी बात चल रही है. तो कहने का मतलब गुड आइडिया एक्चुअली, इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया. ये तो बहुत बड़ा, बहुत जनरस आइडिया, यू नो, तमाचा होगा गवर्नमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट. एग्जैक्टली. 1.5 करोड़ रुपए आपसे नहीं निकल रहे और हम उसको कंबाइन कर सकते हैं. तो अभी बात चल रही है कि वी हैव मेट मिस्टर संजय सिंह MP, ऑनरेबल MP राज्यसभा फ्रॉम आम आदमी पार्टी. We met Water Minister आतिशी जी. We have met MCD प्रभारी विधायक हैं हमारे दुर्गेश पाठक जी, और भी जो सेलिब्रिटीज जयप्रदा जी वो वगैरह वगैरह. तो हमारे प्रोटेस्ट साइट पे वो लोग आए थे, हमने उनसे बात की, हमने अपने ग्रीवेंसेस उनको बताए. बट अल्टीमेटली एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हम इस इशू को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और हम इसको लॉन्ग लास्टिंग परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं. Because we have taken the death of 3 people very seriously. We have taken it very seriously. Because ultimately it's a death. Death is death. And why I tell you that? Negligence on the part. It's a complete ignorance because of excessive commercialism. Exactly. The attitude. I told you the reason. Persistent नहीं है हमारा struggle because we keep rotating, right? तो हम चाहते हैं कि अब इसका long term solution हो, because we have taken the death very seriously, and also we have told the government that we need colonies and some roads in ORN to be named after those 3 kids who died. Yeah. That's a good initiative instead of naming it on the, yeah. It was my idea. Yeah. I in fact told it when Mr. Sanjay Singh had arrived at the protest site. What did he say? Did he encourage this idea? He told ki, are you talking about the library to be named after them? I was like, no, libraries also, but that's a small thing. Libraries you can name, but the road should be named after that. Roads will be persistent, no? They will stand for a long period of time instead of libraries will just vanish. Exactly. Because government is, what I am hearing now, planning to shift major coaching establishments to Narela and Rohini. So yeah, there's a plan. Would be because ORN और करोल बाग की saturation हो चुकी है. It's evident. It's not hidden from anybody. Apart from that, we actually want to bring attention to the government that UPSC aspirants are not the aspirants जो हवा में तीर मारते हैं. हम बड़ा बैट लेते हैं, ये बात सच है. हम बहुत बड़ा बैट लेते हैं, ये बात सच है. I believe there is a reason behind it. But the moment we go into the list और उसके बाद वी कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम लेवल. अल्टीमेटली लोग तो ब्यूरोक्रेसी के पास ही आती है काम निकलवाने और काम करवाने के लिए. ब्यूरोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अंडर अ लॉ. आई एम नॉट टेलिंग कि वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू दैट. वी आर ऑफ कोर्स ऑब्लाइज्ड टू डू दैट. ब्यूरोक्रेसी का काम है. बट लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो टाइम है 2 साल का, उससे पैसा बनाया जाए. आप तो पैसे बना ही रहे हैं बिकॉज आप सर्विस दे रहे हैं, एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं. हमें यहाँ लॉजिस्टिक्स का सर्विस मिलता है, खाने का मिलता है. लेकिन खाने पे क्या फूड क्वालिटी चेकिंग है? कुछ नहीं है. Exactly. तो बिकॉज आप हमारे वीकनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपकी पूरी नेक्सस जानती है. हमारे वीकनेस को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. हो सकता है फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतना आसान है, या फिर देयर आर अदर फैक्टर्स फ्रॉम वेयर दे कैन विन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट्स व्हाई दे आर नेग्लेक्टिंग द इशू. ये भी हो सकता है. there is a wide possibility. And the point which you raised कि हम छोटा तीर नहीं मारते हैं. Exactly. So there's a reason for that. मैंने maximum जो भी aspirant से बात की है, they come from a very good intellectual background. Exactly. बहुत अच्छे colleges से खुद में एक डिग्री है, मैं तो यहाँ तक आपको बोल सकता हूँ. और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पूरा टेस्ट हो रहा है. Exactly. किस तरह का टेस्ट हो रहा है? There's a practical test involved because day after day you are living a life which is tough.
You are facing the competition, cutthroat competition every day. You're competing with your friends, sometimes best friends. Okay, and still you have to live with them. Giving the test series, you know, Exactly. you're my friend and you There get is 5 marks sense of more than me, competition, and then of I have to course. appreciate you. We face it daily. Yeah. So that's a huge thing you learn here. Yeah. That's a great lesson you learn here. Apart from that, people come here from universities like IIM, they come from IIT, Exactly. they come from JNU, they come from DU, they come from other esteemed university of India, from everywhere, from north to south, to from east to west. All the good minds, the cream is here. So you cannot play around with them. Exactly. मतलब I can tell you कि the vastness of the syllabus of the preparation is so that there is no area which is untouched by a UPSC aspirant. Everything is touched. We might be generalist in that. We might be not very technical, slightly technical and generalist. But लोगों को बहुत बड़ा डाउट है कि टेक्निकल लोग ही सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं बट लेट मी टेल यू यू एक्चुअली नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन टेक्निकलिटी एंड फिलॉसफी you actually need to understand कि philosophy brings balance with technicality because जब आप बहुत ज़्यादा technical हो जाते हैं तो you leave human emotions apart. You leave human behaviors apart. That compassion and empathy part goes. Right? And there's no replacement of human mind. There's no replacement of human emotions. Even AI can't do that, right? Yeah, exactly. Right? And of course, you need technology to increase your productivity. You need technology to bring easiness to your lifestyle, right? And technology has proved it again and again. A lot of technology, for example, digital payment mein UPI has brought huge revolution, right? And even the foreign countries such as, if I guess, UK, France, and all of them, they have recognized this potential of India, whom they used to say that India is a very illiterate nation, right? Very old nation, a very prachin nation, right? But we have countered them that we have good philosophy and logic, right? We need very simple technology to bounce. We need very simple technology to fly, right? Exactly. तो यूपीआई बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिव है तो कहने का ये मतलब है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है ही ब्रिंग्स अ वेरी जनरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें वो हर प्रॉब्लम को केटर कर सकता है बिकॉज वो इमोशनल भी है वो थोड़ा टेक्निकल भी है वो थोड़ा एम्पैथेटिक भी है सिंपैथेटिक भी है कंपैशनेट भी है वो चीज़ों को बहुत ही कटोरे में लेके समझता है बहुत ही समावेशी होता है वो इंसान Maybe that comes from the answer writing practice. Exactly. We are always trained to be multidimensional. How you can write an answer in 150 or 250 words, where you have to write about the whole world. Exactly. That frame of one page. That's tough, but you know what? That's what aspirants are trained for doing. Exactly. That's who become the IAS officer, and they are trained for doing. To see the problem in such a way, and to solve and to bring in solutions in such a way that you have the vastness of the world, but at the same time you're very local about solutions. I mean, like we are usually taught in a way that आपको multidimensional होना है, but अगर हमें लिमिटेड वर्ड्स में अपने आंसर्स को कन्वे भी करना होता है तो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हैं बट वी लेट पीपल नो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट राइट बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट वी हैव लिमिटेड वर्ड्स टू टॉक अबाउट 150 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में आप हमारे जो टॉप आंसर्स होते हैं इवन आई पर्सनली ट्राई टू बी गुड इन आंसर राइटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है किसी की वोकैबुलरी अच्छी होती है लैंग्वेज अच्छी होती है लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया में यूपीएससी एस्पिरेंट से ज़्यादा कोई सिचुएशनली अवेयर है आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं बिकॉज यू हैव डन स्पेसिफिक स्टडी बट जितना अवेयर एक यूपीएससी एस्पिरेंट गुड यूपीएससी एस्पिरेंट सो कॉल्ड गुड यूपीएससी एस्पिरेंट जितना सिचुएशनली अवेयर होता है तक कम ही लोग होते हैं Reason for that is you are in touch of the constant current Newspapers. affairs which are there in Newspapers daily. news and also you know about the governance, how government Exactly. works,
you know, how society works, what are the schemes and the policies of the government, how they have been implemented, Exactly, what इसीलिए are the lacunas. इसीलिए ब्यूरोक्रेसी हमें सीक्रेटिव नहीं लगती. Yeah, an engineer is an engineer, that's it. But Engineer a is an UPSC engineer. aspirant has a little bit of engineer, a little bit of manager, a little bit of scientist, Exactly. and a little bit of doctor inside him. बट वर्ल्ड इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है कि लोगों को पैसे में सोल्यूशन दिख जाता है. बट एक्चुअली अगर आप देखो, आप किसी को पैसे दे के सोल्यूशन निकलवा रहे हो, अगर वो मान के बैठा है जिद होके कि नहीं मैंने पैसे लेके काम नहीं करना है, फिर आप कैसे काम कराओगे? It becomes very difficult. It becomes very difficult, right? He is very ethically correct. He is not taking bribe from you, right? फिर क्या करोगे आप? तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट में वो एक डाइवर्सिटी रहती है जो उसको पूरी लाइफ में हेल्प करता है. ऐसा नहीं एग्जाम एस कर गया तो बहुत बढ़िया है, एग्जाम एस नहीं भी कर पाया तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का नजरिया और आपका देखने का नजरिया दोनों अलग है, बिकॉज ही नोज द प्रोविजंस. Yes, and cracking the exam, as you are saying, it's very, very tough. Very you know, 700 posts, 800 posts, and 12 lakh currently is people. 1,000, yeah. Yeah. What does it mean in front of 6 lakh people giving the examination? That's tough. Yeah, but then you actually need to understand not even the appearance, but you actually need to understand the aspiration. The aspiration to serve the country, the aspiration to enter in bureaucracy, to solve the problem on grassroots level, to provide social impact. मुझे अभी भी लगता है कि जितना इम्पैक्ट एक यूपीएससी क्वालिफाइड ब्यूरोक्रेट या बीपीएससी से जो निकलते हैं या स्टेट पीसीएस से निकलते हैं जो वगैरह वगैरह जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, आप देखिए गवर्नमेंट सर्विस बोला जाता है, आप कैनोटेशन को भी समझिएगा तो गवर्नमेंट सर्विस है. तो आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ध्यान से समझिएगा, विच आई ऑफ कोर्स लर्नड फ्रॉम माय टीचर्स ओवर हियर. आई हैड वेरी गुड मेंटोर मिस्टर आशुतोष पांडे सर, मोहंती सर, उनसे बहुत कुछ सीखा है. तो अगर आप बहुत ध्यान से समझिएगा एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपको ये समझ में आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद में एक सीक्रेटिव एजेंसी है. क्यों? क्योंकि वो उसको इम्यूनिटी मेंटेन करना होता है अपने सर्वाइवल के लिए. एक कह सकते हैं राजा प्रजा एक साथ नहीं रहती, राइट? बट राजा ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. मैं ये नहीं कह रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन राजा है, बट इसको समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ये सीखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस लेवल पे सोच रही है जिस लेवल पे अभी आप खड़े हैं. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बहुत ऊपर सोच रही है. आप एक इशू एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके जाइएगा, आपको समझ में आएगा कि ये तो 2-4 स्टेप ऊपर सोच चुके हैं, 2-4 स्टेप ऊपर सोच चुके. अभी हमने मुलाकात करी, आतिशी जी से करी, विधायक जी से करी, हमने मुलाकात करा है, हमें समझ में आ रहा है कि वो हमसे आगे हैं. प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, वो उनकी मजबूरी हो सकती है, पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, सर्कमस्टेंशियल मजबूरी हो सकती है, वो मैं और आप जानते हैं. बट वो हमसे ज्यादा सोच रहे हैं ऊपर. वहां भी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है और सप्लाई हम ही से है. सप्लाई तो हम ही लोग कर रहे हैं, राइट? लोग इसको भूल जाते हैं. इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है कि लोगों को लगता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, कि इंजीनियर बहुत पैसा कमाता है. ऑफ कोर्स वो कमाता है, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आई रेस्पेक्ट इट. बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंजीनियर्स की. दे हैव गिवन अस फैंटास्टिक टेक्नोलॉजीज टू यूज, राइट? हम भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, राइट? बट इसको समझना पड़ेगा. जो बैलेंस सोसाइटी में जो बैलेंस आता है, जो सोशल फैब्रिक को समझता है, जो सोशल नेटवर्किंग करता है, सोशल इंटेलिजेंस रखता है, वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट बेटर रखता है. Exactly. So अभी जैसे आपका गवर्नमेंट से एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर टॉकिंग टू देम, what are the demands which you are conveying to them? What do you really want out of all this thing? What is the fallout of those 3 deaths? हाँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने डेथ को बहुत सीरियसली लिया है. दूसरी चीज़ है कि जो रूटीन प्रॉब्लम्स थी अब तो वो भी क्लब हो गई हैं इस डिज़ास्टर के बाद. तो हमने जो अपने प्रॉब्लम्स को कंबाइन करा है वो बहुत ही ल्यूसिड में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लिस्ट बहुत बड़ी है. तो सबसे पहले विथ रिगार्ड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे 3-4 मेजर इश्यूज हैं. जैसे इफ़ अ पर्सन, फॉर एग्जांपल, नंबर 1, if a person is dissatisfied with the institution, in first 15 days he can show his dissatisfaction to the institution that भाई साहब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाई कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा. 85% to 90% उसके अमाउंट वापस हो जाने चाहिए. वो 15 डेज का पीरियड ही हमने 30 दिन का इसलिए नहीं किया क्योंकि 30 दिन की पीरियड जो होती है वो सैलरी पीरियड होती है. ठीक है? तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भाई बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, 400 स्टाफ हो सकता है, किसी के पास 500-600 स्टाफ हो सकता है, तो उसको सैलरी देगा. ही इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर है उसका वो, राइट?
अब आप उसकी प्लानिंग को बिगाड़ दोगे तो वो भी अनएथिकल है। तो 15 दिन में आप अपने पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैज टू बी रेडी फॉर दैट। दूसरा है वी आर ब्रिंगिंग अ डिमांड ऑफ इंश्योरेंस कि भाई बच्चों की इंश्योरेंस होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। आप टाई अप कर लीजिए, आप बजाज के साथ कर लीजिए, HDFC के साथ कर लीजिए, तो आप वो कर सकते हैं। फिर वी आर This is what every coaching has to do. Wherever students are taking admission, Registered they have to coaching tie centers. Up. Yeah. Yeah, registered coachings. Yeah. They have to tie up with some insurance company to provide insurance, health and life insurance to the student. एग्जैक्टली Okay, that's a good तो demand. या तो कहीं ना कहीं वी आर आस्किंग फॉर व्हाट वी डिजर्व, ऑफ कोर्स। थर्ड इज आल्सो लाइक दैट, Human life matters, man. एग्जैक्टली ह्यूमन लाइफ मैटर्स, राइट? दोज वर यंग किड्स, राइट? अगर वो यूपीएससी 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि वो यूपीएससी क्लियर नहीं भी कर पाते, आपको पता है वो यूपीएससी सिलेबस को पढ़ के लाइफ में बहुत कुछ अपनी लाइफ को ठीक कर सकते थे, अरे आप अच्छे किसान बन जाते हो. राइट? बहुत अच्छा इंसान बन सकता था वो एथिक्स का पेपर पढ़ के निकलता है यहाँ से, Exactly. राइट? वो एग्रीकल्चर पढ़ के निकलता है यहाँ से, वो इकोनॉमी पढ़ के निकलता है यहाँ से, वो एटलीस्ट एक अच्छा सजेशन दे सकता था किसी को, राइट? क्योंकि वो इतना डेप्थ के साथ पढ़ाई किया है उसने, राइट? तो हमारा तीसरा डिमांड है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, बिकॉज ये थोड़ा बहुत ही अप्स एंड लोज का प्रोसेस रहता है यूपीएससी प्रिपरेशन। तो हमारे डिमांड्स में है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, जो कि केटर करेगा। एक साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए वहाँ पे, एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट होने चाहिए जो मेंटल काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को जो लगे, हु सीक्स फॉर द हेल्प, राइट? विथ रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो मैंने फिर से आपको बताया कि कमर्शियलिज्म एक बहुत गंदी एटीट्यूड है, ओवर कमर्शियलिज्म एक बहुत गंदी एटीट्यूड है। तो जो ओवर कंजेस्टेड क्लासेस एंड लाइब्रेरीज है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, सेफ्टी मेंटेनेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, सेफ्टी मेजर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, वाटर वैल्व्स, वाटर हार्वेस्टिंग, डबल एग्जिट गेट, फायर मार्शल्स। हमने एक नया कंपोनेंट जोड़ा है इसमें फायर मार्शल का, कि एक डेडिकेटेड ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड फायर मार्शल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंटिजेंसी। अगर आप देख लीजिए उस दिन का हालात, अगर आप उस दिन का हालात देखोगे तो उसमें बच्चे खुद से ही अपना खुद से हेल्प कर रहे थे, राइट? एंड जो लोकल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वही हेल्प कर रहे हैं, एंड दोज आर नॉट समबडी हु कैन डाइव इनटू द वाटर एंड देन रेस्क्यू द बॉडी, राइट? दे कैन मैक्सिमम पुट द रोप एंड वो डंडे फेंक सकते हैं, राइट? तो ये तो बहुत अनप्रोफेशनल एंड एमेच्योर टाइप की बात हो गई। तो हमें वो सेफ्टी अपग्रेडेशन चाहिए। हम फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बट उसको सेफ बनाया जाए, राइट? अगर ओवर कंजेस्टेड है तो एक स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से आपको सीट एलोकेशन करना है। सेम चीज क्लासरूम में भी अप्लाइड है, ठीक है? ये विथ रिगार्ड टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। फिर विथ रिगार्ड टू रेंटल प्रॉब्लम एंड द इंटरफेस बिटवीन ओनर एंड टेनेंट, उसमें है हमारे उसमें कुछ डिमांड्स हैं, जैसे जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस होने में इश्यूज होते हैं। समबडी थ्रेटन द स्टूडेंट, भाई क्या कर लेगा तू, नहीं देंगे, जहाँ जाना है चला जा। एंड लोकल प्रॉब्लम, कई बार एक कील दीवार पे ठोकी हुई अगर मिल गई तो उसके भी 1000 रुपए काट लेते हैं, 1000 रुपए, जस्ट टू मेक रीजन, वेरी आर्बिट्ररी। हाँ, कि भाई तुमने क्या कर दिया, तुमने क्षति कर दिया हमारे कमरों का, ये कर दिया। भाई वो उसके लाइफस्टाइल का पार्ट था, वो अपने घर में भी वही करता है। छोटी सी कील ठोक दी, कौन सा हमारा तीर मार दिया उसने, राइट? पे एक तस्वीर लगेगी माँ बाप की या भगवान की, हो सकता है इंसान माँ बाप से दूर है, अगर लगा ही सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं बट उसको वो गैल्वेनाइज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो हमने उस पर क्लियरली लिखा है कि वी नीड अ लॉ फॉर दैट, वी नीड अ लॉ टू सर्व आवरसेल्फ, वी नीड अ लॉ। उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल होगा सब कुछ, सिक्योरिटी मनी, रेंट, प्राइस कैप एज पर स्क्वायर फीट, साइज ऑफ द रूम, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द रूम, बालकनी है कि नहीं, हाइजेनिक है कि नहीं है, वेंटिलेशन है कि नहीं है। तो दोज विल बी द टर्म्स एंड कंडीशन जिसके हिसाब से आप प्राइस कैपिंग कीजिएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि देयर इज अ परसेप्शन दैट ORN इज अ एक्सपेंसिव प्लेस, तो यहाँ पे वाजीराम के बगल में या कोचिंग के बगल में आपको कुछ मिल गई तो आपने ज्यादा पैसा चार्ज करना है। 1,90,000 रुपए तो उसने भी दिया जो करोल बाग में रह रहा है। कोचिंग की तो फीस उसी ने, ऐसा तो है नहीं कि आपने कम कोचिंग की फी दी है इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा कॉम्पनसेट, ऐसी बात तो है नहीं, राइट? तो ये परसेप्शन है कि ORN एक बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है, तो हमने उसको लॉ में डालना है। हमारे रेंटल इश्यूज वही हैं। जो मेंटेनेंस है वो दैट विल बी द सोल अथॉरिटी ओनर्स ऑफ द
ओनर। ओनर। हाँ, मेंटेनेंस ओनर के हाथ में, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं भाई साहब, हम लीज पे थोड़ी लेने आए हाँ, हैं। ऊपर से घर बिल्डिंग आपका है तो मेंटेनेंस आपको ही करना एग्जैक्टली, पड़ेगा, दैट विल बी द आप रेंट तो आपको मिल ही रहा है, एग्जैक्टली। वो भी है। और एक उसमें ये भी हमने जोड़ा है कि एज अ वेलफेयर अप्रोच, बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, राइट, और स्टूडेंट को आप 200-300 रुपए अगर वाटर बिल माफ कर दोगे ना, तो उसके आई थिंक 3 दिन का खाना है यहाँ पे। दैट्स सैड टू टॉक अबाउट, बट 2-300 रुपए अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, तो उसके खाने का वो 2-3 दिन का कॉस्ट है। तो वाटर सब्सिडाइज होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रेट भी हमारे लिए One more सब्सिडाइज होने चाहिए। issue which I have seen, if let's say you live in a 3 BHK house, and 3 BHK simply means that you have a hall, Exactly. then you have 3 rooms. As we have seen here, there are 2 bathrooms in a 3 BHK and Exactly. 1 kitchen. हाँ, Now, what do the owners do just because of seeking more rent from students? They allow 2 students to live in a single room. So how They many play a game. 3 BHK, that rooms become 6 people living in Exactly. 3 rooms. Then comes the hall. They Hall is divided- compartmentalize. Yeah, They the make hall is divided compartments. into Yeah. either 2 or 3 parts, compartmentalized by cardboards. yeah. You know, and Plies are used. they take it as a single room, and they charge like 10,000, 8,000, 10,000 for that cardboard room. Exactly. And in a 3 BHK flat, sometimes around 8 to 10 people are staying. Now this is very unhygienic. This is not at all dignified. Exactly. When Supreme Court says right to life, it says right to very live a valid dignified point. life. Exactly, not animal that's a very existence. valid point. So have you raised this issue also in front of Yeah, we are the very authorities? we are very clear in that स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको फिल करने हैं रूम्स को, एंड आप ओवर कंजेशन नहीं कर सकते उसको, बिकॉज दैट इज अनहाइजेनिक, एज यू सेड, दैट इज अनसेफ ऑल्सो। So okay, there are 2 issues. One is over congestion नहीं होगा, second is rent बहुत प्राइस कैप भी लगेगा उस Price पर। cap हाँ, भी वो सारी चीजें इंक्लूडेड है हमारे डिमांड्स में, लिस्ट ऑफ डिमांड्स में। ये तो हो गई विथ रिगार्ड टू रेंटल इश्यूज एंड थिंग्स है। उसमें छोटे छोटे डिमांड्स और भी हैं, मैं तो आपको बुलेट पॉइंट्स में बता रहा हूँ। छोटे छोटे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ लोगों को कुत्ते पालने की भी शौक है, Oh, that is a very big issue. एंड यू नो डॉग बाइटिंग। तो अगर एक स्टूडेंट को डॉग बाइटिंग हो भी गई, उसके लिए कोई एम्बुलेंस सेवा तो है नहीं इमीडिएट। They have to go 5 आप समझ रहे times हैं? to RML Exactly. hospital. और फिर nearby गंगाराम बगल Patel में, Nagar. और गंगाराम इज अ प्रीटी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, एज यू नो। You cannot go to Gangaram. You have to go to RML. Yeah, I remember one of my South Indian friend, Southern Indian friend, of course. He had gone to Gangaram. He didn't listen to me. I was like, "Why are you not listening me when you have fever?" I was like, "No, I have to go Gangaram," and he had to spend 10,000 over there. So that was a waste, right? Just for half day. हाँ, तो डॉग बाइटिंग इज ऑल्सो एन इशू। उसके बाद एक कुछ ग्रीवेंस नहीं है, तो ये तो हो गई विथ रिगार्ड टू रेंटल प्रॉब्लम्स। उसके बाद विथ रिगार्ड टू इमीडिएट चेंजेस, तो हम इन सब प्रॉब्लम्स का जो एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो है विद्यार्थी बूथ का कॉन्सेप्ट। वो है स्टूडेंट सेल, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट सेल जो हमारे लिए 1 स्टेप सोल्यूशन होगा। अब आप पूछेंगे कि हम पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहते? हम पुलिस में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज वो एक बहुत रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, एंड बहुत बच्चों को तो भाई जाने में डर लगता है That's very कि भाई exhaustive also. those are very exhaustive, and you know what questions they can ask, you know they can take photos, take numbers, Aadhaar card, and people are little And you're you know fearful. exactly What if parents to- come to know that you went to police station for yeah something? for something, right? कुछ ऐसा हुआ होगा जो छुपा रहा होगा, तो lot of miscommunication can happen। तो हमने ये डिसाइड करा है कि हमारे लिए एक डेडिकेटेड स्टूडेंट सेल होना चाहिए जो हमें रिसीविंग देगा हमारे कंप्लेंट्स के बाद, टोकन देगा, और फिर वो ऑनलाइन अपलोड होगा एक यूनिफाइड पोर्टल पे, एंड देन अपन उसे एक्सेस कर पाएंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स, ये हमारे कंप्लेंट्स का क्या स्टेटस है। And what kind of complaints can be registered there? Rental complaints can be registered over there. Brokerage harassment can be registered. Again, on brokerage, I can tell you कि brokerage की भी सिस्टम को हमने rationalize करने की कोशिश की है, जिसमें हमने ये देखा है कि आप 21 दिन का 25 दिन का ब्रोकरेज ऐसे अथॉरिटेरियन होके नहीं ले सकते हैं हमसे। आपको जब रूम के लिए बोला जाता है कि भाई साहब हमें रूम चाहिए, तो डिमांड्स भी रखे जाते हैं, भाई एसी चाहिए, भाई वेंटिलेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आप उसको अगर मीट करोगे तभी आप एक सर्टेन अमाउंट प्रिंसिपल आप लोगे, राइट? एंड दैट माइट नॉट बी 21 डेज का ब्रोकरेज। आप यू हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर फीट की रूम की साइज कितनी बड़ी है,
रूम प्रॉपर है कि नहीं, मेंटेन्ड है कि नहीं, बेसिक फैसिलिटीज, टेबल चेयर है कि नहीं, उसके हिसाब से आप जो भी उस 7 दिन का, एक वीक का पैसा जो भी बनता है वो आप ले सकते हो। उसको थोड़ा रैशनलाइज करेंगे, उसको हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कमर्शियल To जगह put है। it simply, if your rent is 30,000, you have to give a broker 21,000 rupees. Nowadays, what is prevalent? Sometimes it is 1 month brokerage which you have to pay. That is like 30,000 paying to the broker, yeah, and it's gone. It's not going to come it's back. totally gone. Let me put it very simply. If somebody comes in this place and wants a room, Yeah. and the room cost to the maximum, we can say the rent does not go above 30,000, I think. Normally does not go. And if we go to that end, that if your rent is 30,000 rupees, so you have to pay a brokerage of around 21 to 25,000, plus you have to give a security of 30,000, that is 1 month security. Exactly. So at That's one so- given time, at one point, हाँ जी। you have to spend how much? 30 plus 30, 60 plus 20, 81 to 85,000 rupees समझ लो। just to take a room here. Just to take a room and come and settle. Yeah. So you And can- when you're going back, You Then, you have you do problem not- in getting the security money back. yes, Exactly. or half of it, or Exactly. few Some thousands people are less. like कि नहीं भाई 21 दिन का दे पाएंगे, आधा लेना है ले ले. So we need everything in a law, certified law. We need everything in a law on contractual basis, जिसका अपील होगा, जिसको अपन अपील कर पाएंगे, और विद्यार्थी बूथ विल बी वन स्टेप सोल्यूशन। क्विक रिएक्शन टीम भी हमने मांगी है, हमने भी मांगा है कि क्विक रिएक्शन टीम चाहिए स्नैचिंग वगैरह के लिए, क्योंकि स्नैचिंग एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। Women safety is another issue Exactly. here. तो एक क्विक Both रिएक्शन is टीम required. होगी एज अ डेटरेंस फोर्स। एक क्विक रिएक्शन टीम होनी चाहिए हमारे लिए यहाँ पे। एम्बुलेंस का सेवा तो होना ही चाहिए स्टूडेंट के लिए। अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बाहर से आए हैं, वी हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, राइट? See, sometimes what happens when you enter this area at night. Let's say you're coming from Connaught Place side or from the other side, and you see there are not many vehicles on the road. There are not many people on the road. Exactly. And the moment you That looks enter so Old scary. Rajendra Nagar, That actually looks so scary. yes, but the moment you enter Old Rajendra Nagar, you can actually see people, even girls, roaming freely on the road, so Exactly. secure, Yeah. so nice. So there is a kind of security in this area Yeah. for students. Yeah. And I don't know, even police helps in maintaining that security. Yeah. But there sometimes the element do come from outside. या पहाड़गंज के साइड से बहुत लोग आते हैं, Yes. शाहदरा And those are एंड the सीलमपुर के एरिया से बहुत लोग आते हैं। Those are the people who are creating problem here, snatching and other things. चोरी की हुई बाइक से आ जाएंगे, वो इशू क्रिएट करते हैं स्नैचिंग करके। अब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, वो बोलेंगे कि बाइक चोरी की हुई थी, हमारे पास कोई रजिस्टर, तो यू मेक पीपल होपलेस एंड अल्टीमेटली वी आर बाउंड टू बिलीव दैट भाई सबके साथ जो होता है वही हमारे साथ भी हो रहा है, लेट्स लिव रूम में घुस के कई बार वो लैपटॉप और आपके मोबाइल In libraries, they have actually done it. If you see, libraries have got passwords and they've got authentication, fingerprints and things like that. Security cards वगैरह सब पे बट गए हैं अब। तो उसीलिए हुआ है because बहुत लोग सुबह में मॉर्निंग में 5 o'clock just go and open the locker and whatever gadgets is available just snatch it. Very bad culture, very bad culture. You can think कि क्या बीतती होगी स्टूडेंट पे, right? Very bad culture, very bad. And those are not the locals doing it, those are not the students doing it, those are the people who are coming from outside. Taking the this advantage, area. yeah. Mostly. अभी तक तो यही एविडेंट है कि they are actually coming from outside. Yeah, because locals will do rare amongst the rarest, but chances locals के कम है इसमें। Locals so they won't indulge in बदनामी all होने these की things. chances बहुत है। Exactly. Another thing, they have to live here, so they cannot do all this. Yeah. They have to be visible in front they of are family society. people, anyway, they are more sober than people who are committing the crime. Another issue which I have seen here is about food. You have also mentioned now the very kind of food you get. One time meal, your student on average have to pay around 60 to 70 rupees. That means in a day, if you take 2 meals, you have to pay around 140 to 150 rupees. If you include breakfast, on average you have to pay 200 rupees a day. Yeah. That is the food expenses. Yeah. Versus the quality. Oh my god, the quality is so bad that Pathetic. a person who comes from a home, mother cooks, sister cooks,
and then you jump onto the UPSC preparation, you come to ORN, and then you eat this food which Exactly. is half in nutrition level Yeah. and quarter in taste. Yeah. And That's you have perfect word to you have describe, to yeah. pay 3 times what you pay at home. Yeah. So don't you think there has to be a quality check of food? One of the demands which you should also Actually, include. we have compiled this as a grave issue because this is directly related to the health of the aspirants. So हमने इसको रेज करा है कि आप सरप्राइज क्वालिटी चेकिंग आपको करनी चाहिए यहाँ पे. ऑलमोस्ट मेसेज आर ऑपरेशनलाइज, सारे मेसेज यहीं पे चलते हैं एंड हम चाह रहे हैं कि ऑडिटिंग हो, सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग शुड बी ऑडिटेड, क्वालिटी चेक्स होने चाहिए, ठेलास वगैरह जो लगते हैं इधर उधर जो चीज़ें लगी रहती है. तो हम स्ट्रीट फूड के भी यहाँ पे आदी हैं तो हम खाते ही हैं. तो हम ये भी सोच रहे हैं कि भाई उस पे आप थोड़ा सा कड़ाई करो, बिकॉज होता क्या है अल्टीमेटली कि 60-70 रुपीज़ के प्लेट्स यहाँ पे मिलते हैं. देर आर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स बट वी कांट अफोर्ड टू गो टू द रेस्टोरेंट ऑल द टाइम, राइट? So sometimes you can go. Sometimes we can go maybe in a week or something like that, but daily तो it's not possible. Or things like that. Exactly. तो डेली इट्स नॉट पॉसिबल. तो 70 रुपए की थाली फिर भी एक खुद में अच्छी थाली होनी चाहिए. नॉट माइट बी डिलक्स बट इट शुड बी अ गुड स्टैंडर्ड थाली होनी चाहिए. तो होना चाहिए. न्यूट्रिशन तो होनी चाहिए कम से कम. आप खाना, और सबसे बड़ी बात मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा कि अगर आप खाना खिलाने की अच्छी भावना रखते हैं, आप खाना खिलाना चाहते हैं किसी को, पहले आप उसको खिलाना चाहते हैं, आप उसको टेस्ट कराना चाहते हैं, तो आपका खाना अच्छा हमेशा चलेगा. अगर आप उसको खाना कम दे के ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में है, ऐसे मैसेज यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाते. ये भी commercialization has affected that sort of behavior and attitude of people. A lot. But there has been a great culture of this country to serve food to the guest first. It's so indispensable to our culture and tradition and customs, right? But commercialization, and we all love it. I don't know why we all मैं तो गांव में जाके किसी के घर में खाना मांग लूंगा ना अपने गांव में, तो वो इतना प्रेम से खिलाएगा. मैं तो समझ नहीं सकता कि मतलब शहरों में कैसी. Another very important issue which has nothing to do with what has happened now, but a common issue for student, and that is suicides. Too many suicides here. Now, suicide, one we have seen recently, unfortunately, a girl committed suicide because of the pressure, harassment the owner. by the owner and the broker. Yeah. That is another thing. Because of studies, so the mental pressure, the cutthroat competition which students are facing here. Do you think some sort of service from the state or some sort of service from the coaching institute, as you pointed out, about the psychiatrist and psychologist, along with that some sort of meditation or other issues, the solution to the emotional issues through meditation and through yoga can also be incorporated in your demands? See, let me bring your attention to a very specific context. देखिए, होता ये है कि जब ये प्रिपरेशन अपन स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम निकाल लें, और निकाल ही लेंगे. जब हम इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पढ़ने को बहुत कुछ है. फिर जैसे हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाती है तो फिर एक टाइम में लगता है कि अब तो अभी सिलेबस कंप्लीट ही हुई है, अब तो खुद से पढ़ना है. कोचिंग ने कंप्लीट करा दिया, अब तो खुद से पढ़ना है. उम्र रुक नहीं रही, आपकी उम्र नहीं रुक रही, रेंट भी नहीं रुक रहा, लोकेशन भी चेंज नहीं हो रही. प्रेशर आप पे माउंट होता रहेगा. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो आपके स्टेज, उस स्टेज पे आप निकालने वाले थे ही नहीं. अच्छी आपसे नहीं निकली, आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आया है कि एग्जाम निकलेगा कैसे. तो फिर अटेम्प्ट्स, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगते हैं. जहां तक बात है हरासमेंट की, अगर ओनर के साइड से हरासमेंट है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है. ये कंप्लीट फेलियर है यहाँ की पुलिसिंग सिस्टम का. इसका सीधा मतलब है क्योंकि आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप किसी को हरास कर रहे हैं. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगेगा. अगर यही चीज गांव में होती है, तो तुरंत पुलिस आ जाती है. भाई क्या हुआ, क्या कर रहा है, आप समझ रहे हो. यहाँ पे आई नो सम पीपल हु जस्ट कॉल यू आफ्टर द क्लॉक पासेस 12. बेटे रेंट दे दिया तुमने रात को,
डेट चेंज हो गया, हाँ ठीक है, डेट चेंज हो गई भाई साहब, पैसे दे देना है, मैं सुबह में भेज दूंगा अपने आदमी। ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी तो कहने का ये मतलब है कि इससे दिख रहा है कि आप रेंट पे इतना ज्यादा निर्भर हो गए और वो बिजनेस आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो कि बिजनेस है भी नहीं। हो सकता है यहां से कोचिंग इंस्टीट्यूट उठ के रोहिणी और नरेला चला जाए, फिर आप क्या करोगे? बहुत गंदी हालत हो जाएगी आपकी, बहुत गंदी हालत हो जाएगी। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साइड से स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो हमने बात करी है कि काउंसलिंग वगैरह होनी चाहिए, और पुलिस की ये बहुत बड़ी ग्रेव मिस इग्नोरेंस है कि आप यहाँ के लोकल्स को अगर आप डेटर नहीं कर पा रहे हैं कि भाई तुम अपने टेनेंट को कौन डराता है, आप बताओ। अपने टेनेंट को, आपको पसंद नहीं है आप निकाल दो, 1 महीने की नोटिस दे दो। आप कहते हो 1 सप्ताह में खाली कर दो क्योंकि यू हैव गॉट सम सदर्न इंडियन स्टूडेंट हु कैन पे यू 15K एंड ही इज पेइंग यू 10K। आप कहते हो 1 सप्ताह में, और 1 सप्ताह में वो बंदा फंसा हुआ है, बंदा पुलिस स्टेशन में नहीं जा पा रहा है, वो खुद से संभाल नहीं पा रहा है। भाई हमें तो खैर ओनर नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी हैव आवर डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग, सब नहीं कर पाते ऐसा, राइट? और फिर उसमें पुलिस को तो पता है, मेरे व्यू पॉइंट में ऐसी कोई चीज नहीं है सोसाइटी के बारे में जो पुलिस को नहीं पता है। पुलिस को सब कुछ पता है, उनके पास चोरों की लिस्ट है, बहुत लंबे हाथ हैं, हाँ, कान भी लंबे हैं, दिमाग भी तेज है, सब कुछ है। उनके पास सब कुछ है, बट वो अटेम्प्ट क्यों नहीं लेते? इम्यूनिटी में जीना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, काम का बर्डन नहीं लेना चाहते। कौन करेगा इतना काम, चलो सेटल हो ही जाता है, लोग आपस में भगवान भरोसे। तो फिर रहने दो भगवान भरोसे, फिर आप हैं क्यों? स्टेट का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब क्या है? स्टूडेंट कम्युनिटी एक बहुत ही जेनरस कम्युनिटी है, बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए इस कम्युनिटी का, इस कम्युनिटी की बहुत रेस्पेक्ट होनी चाहिए मेरी नजर में। People have earned thousands of crores from students in this area, Exactly. owners plus coaching institutes plus Exactly. The food businesses Exactly. and the clothing businesses and everybody. Exactly. It's Very an less teachers ecosystem in reside itself. over here. Very less teachers teaching in the coaching institute reside in this area. Very less teachers. I know very few teachers who can reside in because they know the reality. भाई कभी आपकी चेन छिन जाएगी, आपने तो गोल्ड पहनना है, आपकी कभी चेन छिन जाएगी, कोई चाबी में आके गाड़ी की चाबी ले लेगा सटा के, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। अब स्टूडेंट को आपने अकेला छोड़ दिया है कितना कितना दुखद है ये, बहुत दुखद है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जो थोड़ा मैस्कुलिनिटी होती है जिनमें, तो वो थोड़ा सहन कर सकते हैं या फिर दबाव डाल सकते हैं। मैं डे टू डे बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, बट कुछ लोग होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड, भाई साहब नहीं ठीक है। Most of them come from very humble background. एग्जैक्टली, You know, this is a middle class phenomena that they want to crack the UPSC examination, not an elite phenomena. it's like to नेताओं serve. के बच्चे या IAS के बच्चे भी यहाँ पर बहुत कम दिखते हैं who wants to become a IAS officer. Exactly. Most of the people हिंदी पट्टी से आते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, और अब तो थोड़े तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी आने लग गए, बट ज्यादा चंक अपने हरियाणा से थोड़ा सा रहता है बिकॉज ऑफ गुरुग्राम। महाराष्ट्र का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन, महाराष्ट्र का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। वहाँ पे वो स्कॉलरशिप चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चलाती है जो उनके गवर्नमेंट एग्जाम्स को पास करती है। दिस इज अनदर इशू व्हिच नोबडी हैज रेज्ड, दिस इज अ वेरी गुड इशू यू हैव कम अप विद, द स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग their state children to come up here. The state government pay money to the coaching institute, also pay monthly sort of stipend to the student to live here, and which bears their expenses of rent and because वो चाहते हैं उनके लोग जाएं सिस्टम में। So एक और वजह जिसकी वजह से ये congestion बढ़ा है इस एरिया में is the government support. Exactly. Also, the community such as the Jain community and the Jat community has come forward and helped their student. But the negative side of it is it has created too much of congestion in this area because कुछ बच्चे ऐसे हैं जो state backed हैं। कर्नाटका ने अपने बच्चों को बैक किया हुआ है, महाराष्ट्र ने अपने बच्चों को बैक किया हुआ है, आंध्रा ने करा हुआ है, तो कोचिंग की फीस स्टेट भर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भर रही है। Exactly. Accommodation too. स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, खाने का पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, but they are living in a place which is too congested. Think about a situation. Divyakirti sir तो उस दिन I don't know why he was trying to what I felt was जो इशू है उस पे बात ना करके डाइवर्ट इशू करना के बारूद पे बैठे हुआ है दिल्ली, अगर एक भूकंप आ गया तो everybody knows about that, but you know anyway, but अगर उस बात को सीरियसली लिया जाए जो लेने लायक है भी,
डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्रिपरेशन है देश के अंदर, अर्बन डिजास्टर इस तरह से हो जाते हैं कि बेसमेंट में 3 बच्चे, तो थिंक अबाउट अ सिचुएशन इतने कंजेस्टेड एरिया में एक भूकंप का झटका आया तो क्या होगा। और अगर ये प्रॉब्लम हम उस समय सॉल्व करने गए कि यार 3 जनों के घर में 8 लोग रह रहे थे, इट विल बी वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। कि दिल्ली में ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, कैपिटल है, तो स्टेट कंट्री कैपिटल है, तो लोगों का इन्फ्लक्स नेचुरल भी है, नेचुरल है, बट वो अनएथिकल नहीं होना चाहिए। अब अनएथिकल अगर होती जा रही है, इसका मतलब है कि डिपेंडेंस ऑन दिल्ली इज इंक्रीजिंग। आपके पास टियर 2 टियर 3 सिटीज रेडी नहीं है। आपके पास टियर 2 टियर 3 सिटीज रेडी तो होने चाहिए ना। जैसे आप बैंगलोर चले जाओ कर्नाटका में, सो वहां पे एक गवर्नमेंट की प्रोग्राम है बियॉन्ड बैंगलोर, उसके तर्ज पे वो मैसूर को रेडी कर रहे हैं, उसके तर्ज पे वो गुलबर्गा वगैरह एक जगह है उनका, उनको तो करना पड़ रहा है क्योंकि उसका रीजन ये है वहां पे पानी है ही नहीं। 100 किलोमीटर दूर नदी से तो पानी बुलवाते हैं बेंगलोर को फीड करने के लिए, क्योंकि लेक्स थी, लेक सारी इंक्रोच्ड हो गई है। एग्जैक्टली तो पेवमेंट इतने बन गए, सीमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि जमीन नहीं दिखती है। एग्जैक्टली इंक्रोचमेंट है, वेटलैंड्स वगैरह इंक्रोच्ड हो गए। तो विकास दिव्यकीर्ति सर का तो मैंने देखा था, और सर तो खैर हम लोगों से बहुत But students were very much angry with him that he came on board after 3 to 4 days, and same with Oja sir. And Oja sir have been passing comments on students like anything. No. I look at it very differently. I don't look at it very emotionally. I look at it from the law and order situation point of view. आप ओझा सर को, विकास दिव्यकीर्ति सर को नॉर्मल टीचर के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। वो पब्लिक फिगर हैं, ये बात सच है। So they also have the responsibility. Exactly. उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती थी। फॉर एग्जाम्पल उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, वो उनके साथ आ सकते थे एज अ शील्ड एंड सिक्योरिटी, राइट। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, हमारे मूवमेंट की ऐसी की तैसी हो सकती थी। आप समझ रहे हैं। और मुझे what point he has raised, Divyakirti sir, that he was threatened, not threatened, sorry, he was fearful about his own security, because the kind of aggression student had, and the kind of age they are in, it was very difficult to stop them you know for being aggressive after such an incident has happened. young people बहुत उत्तेजित होते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा डेडली हो जाता है। एंड दैट वाज स्टार्टिंग डेज ना, नी जर्क रिएक्शन था वहां पे, क्यों मरे, कैसे मरे, ये तो बहुत मूर्ख इंसान है, एमसीडी बहुत गंदी है, कभी हेल्प नहीं करती, रेवड़ी वाले से पैसे वसूलते हैं, ये करते हैं, हफ्ते लेते हैं। तो जो एविडेंट है, मैंने आपको बोला ना कि रूटीन प्रॉब्लम हमें दिख ही रही थी, बस बारूद फटने की देरी थी, ऐसे इंसिडेंट हो गया और बारूद फट गई। But it's very interesting that you are talking positively about these two teachers, because मेरे को अभी तक जितने भी लोग मिले हैं वो भावुक हैं थोड़े। they have been talking negatively about these two teachers, because they are the one who pulls the maximum crowd to Delhi for offline classes. True, very true. And all of a sudden Oja sir started to talk more about online classes now, because he is not linked with any offline institute here. Yeah. So people are saying that he's trying to promote his own online initiative. That is one thing. And the attitude he has shown, like एक बच्चे ने कुछ सवाल पूछा था, तो इन रिटर्न उन्होंने पूछा कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, उसने कहा 6 साल से शायद। तो कहता अभी तक तेरा निकला क्यों नहीं? I mean like the student could have said कि सर आपका भी तो नहीं निकला, but that would have been a slap on the face. But using such languages, do you really think it's wise? नहीं, मतलब देखो, मेरे हिसाब से तो मैं इसको थोड़ा अलग देखो। ओझा सर एक बहुत ही सीनियर टीचर है, और उनको थोड़ा सा डांट फटकार करने का तो भाई हक बनता है। और मैं पर्सनली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा मानता हूँ कि टीचर से तो स्टूडेंट को सुनना ही चाहिए, वो एक टॉनिक की तरह है। मैंने तो अपने लाइफ में बहुत सुना है। मैं आज भी टीचर्स को मिलता हूँ या अपने पुराने टीचर से मिल जाता हूँ, तो मेरी आप बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, इतनी श्रिंक हो जाती है ना, इतनी श्रिंक हो जाती है कि आई गेट कि भाई मैं पब्लिकली कैसा हो गया तुरंत 2 मिनट में। बट वो रेस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं मेरे हिसाब से। ये कहना कि सर आपका भी नहीं निकला, लेकिन तुमने तो ओझा सर के टीचिंग का फायदा उठाया, तुमने तो उनके टीचिंग का फायदा उठाया। और जहां तक सवाल है, तुम अपनी बातों को ओझा सर को ढंग से भी तो रख सकते हो। तुमको ये राइट किसने दिया है कि अपने इमोशन से तुम किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करो? अगर आप ओझा सर के बच्चों से या विकास दिव्यकीर्ति सर के बच्चों से पूछिए, तो वो बोले भाई साहब मेरे पिताजी के लाइब्रेरी में थोड़ी हुआ है, आप क्यों कह रहे हैं? कह सकता है ना। तो अगर आप किसी को लपेटना चाहते हैं,
तो आप देखोगे ना कि आपकी सिनेरियो क्या है, राइट? अगर वो आते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती, फिर तो हम स्पीचलेस हो जाते हैं, हमारी मूवमेंट का क्या होता? आई थिंक उन्होंने ना आगे हमारी मूवमेंट को सपोर्ट किया, और मैंने आपको पहले बताया कि हमारा कॉज खुद में इतना परसिस्टेंट है, हमारा कॉज खुद में इतना बड़ा है कि हमें आउटसाइडर सपोर्ट की उतनी जरूरत भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक वीडियो मैसेज सर जारी कर सकते थे हमारे लिए, वो हो सकता है, एक वीडियो मैसेज सर को Do जारी you करना। really need the support of faculty? नो, Not at all. no, no, because we are aspirants, number one, and we are in good quantity, lakhs. Why you think too many faculties are now coming and speaking? शुरू के 2-4 दिन में नहीं आए, but then they started to come up. और अब देखा जा रहा है कि they are also, the bigger institutes here are paying money to the deceased. That is one thing. They are also providing free coachings to the students who have taken admission in Rao's IAS because that coaching has closed down as of now. तो वो भी वो कर रहे हैं, एंड फैकल्टीज प्रोटेस्ट साइट पर भी आके वर सपोर्टिंग यू। ये फिनोमिना 2-3 दिन बाद क्यों शुरू हुआ? डोंट यू थिंक कि ये वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, मैं आपको बता सकता हूँ, वो वेट एंड वॉच की सम स्थिति अग्रेशन में हैव, दे मे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ। उन्होंने जब देखा कि 2-3 दिन के बाद प्रोटेस्ट में अब एक अलाइनमेंट आ रही है कि हम सोल्यूशन की तरफ निकलना चाह रहे हैं, या फिर हम मीडिया एंगेजमेंट में बहुत जब फंस गए ना, जब हम मीडिया एंगेजमेंट में बहुत ज्यादा फंस गए, तो फैकल्टियों को ये लगा, देखिए उनके आने से तो सपोर्ट तो मिलता ही है, उनके आने से अगर स्टूडेंट को सपोर्ट मिला, ये बात सच है, क्योंकि वो आगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट को अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट कोई कर सकता है वो टीचर और यहाँ के लोकल्स थे, वो हमारे लिए खड़े हो सकते, लोकल्स एज ए गार्जियन खड़े हो सकते थे और टीचर एज एन इंस्पिरेशन खड़े हो सकते थे हमारे लिए, तो वो हमारे लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता था। लेकिन कुछ टीचर्स, मुझे ऐसा लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी प्रमोट करने आए थे, वो नेचुरल है, हमने वैसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया है अब मूवमेंट में। अब ये भी है ना कि इन वन वे यू कैन से द मूवमेंट वाज आल्सो अगेंस्ट द faculties and the coaching institutes. At a point the movement was hijacked. Yes. It was we who countered. We had to make some slogans, right? And किसी के पास कोई राइट नहीं है हमारे भाई साहब, आप मेरे को एक बात बताओ, जो पीड़ित है मुकदमा उस पे दर्ज होता है, जो पीड़ित है मुकदमा तो उसी पे दर्ज होएगा ना। कोई पड़ोसी है वो थोड़ी कह सकता है कि भाई तुम मेरे पे मुकदमा दर्ज करा दो, मैं लड़ लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है, वो ट्रांसफर नहीं होता। विक्टिम जो है वो विक्टिम है, आप उसके पीछे खड़े रह सकते हैं। लॉट ऑफ एलिमेंट्स वर ट्राइंग टू हाईजैक द मूवमेंट, लॉट ऑफ एलिमेंट्स वर, वी हैड टू पुश देम बैक बिकॉज वो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे हाथ से निकल जाता बिकॉज हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है, भाई हम स्टूडेंट हैं, हम उसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास पीछे कोई संगठन तो लगी नहीं है, तो हम तो उसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, भाई बैरिकेडिंग तक चला सकते हैं, अपने लिमिट्स को हम जानते हैं, हम सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं खड़े कर सकते यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे यहाँ के जो लोकल्स के बच्चे जो स्कूल्स में जा रहे हैं, तो हम उनके लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो खड़ा नहीं कर सकते ना। बट हाँ, हम लेजिटिमेट वे में अपने प्रोटेस्ट को जारी रख सकते हैं और अपने डिमांड्स को फुलफिल करा सकते हैं, और हमारे डिमांड्स बहुत बेसिक है, अगर आप उसको ध्यान से देखें बहुत बेसिक है। वो डिमांड्स को मैं देख रहा हूँ तो उसमें आप कुछ नया कह भी नहीं रहे। What you are trying to say to the government is implement the already established laws properly. That's हाँ, that's what, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। पहले से भी रेंटल लॉज हैं यहाँ पे, रेंटल लॉज हैं, there are safety guidelines, there are guidelines related to the food quality, everything is there, you just need to implement it properly. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे हूँ, I have never seen the concerned district magistrate of this area having a look or talk to people in the park, talk to aspirants on Chai Ka Point, talk to aspirants on दुकान, कहीं नहीं। आप देखें ना, आपकी एटीट्यूड दिख रही है। And you know why you are saying this is because students are contributing economically. Huge ecosystem, huge. Yeah. Instant economic pump we provide. We provide instant economic pump. So at least that much of responsibility must be there to look after the the aspirations and the look after the safety of the students. Exactly, मैं आपको बता सकता हूँ, एक बैचेस लॉन्च होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चले 500 उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, 400 गज की क्लासरूम है, अगर 500 उसका स्ट्रेंथ है, 500 का स्ट्रेंथ है, 3,000 रुपए अगर आप मिनिमम
एक मेस का चार्ज रखते हो, तो 500 बच्चे 3,000 रुपए मेस को दे के आए एक तारीख को, 500 स्टूडेंट 10,000 रुपए एवरेज में बता रहा हूँ रेंट दे के आए, 500 घरों में, ये कम से कम 200 से 300 घरों में। उसके बाद वो पैसे रेंट में दे के आए हैं, होटल्स में दे के, मेस में दे के आए हैं। तो आते के साथ वो इकोनॉमी में इंस्टेंट पंप कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, 50,000 रुपए लेके आते दे देते हैं। आप समझ रहे हो, यहाँ पे डिमांड सप्लाई इतना वेल बैलेंस्ड है, इतना वेल बैलेंस्ड है कि यहाँ के लोगों को सोचना ही नहीं है। इसीलिए तो वो सोच नहीं पाते, अरे एक गया ना दूसरा आएगा, कोचिंग तो यही है, कहाँ जा रहे हैं, Exactly. कोचिंग तो यही है, कहाँ जाएंगे ये लोग। ये बात हो जाती है भाई साहब, ये दिक्कत है यहाँ पे। So, okay, so when you guys are going to meet the Honorable Lieutenant Governor and put your demands forward? Yeah. So आज के डेट में we have planned to form a delegation, and that has to be based on merit. That has to be based on democratic nature. Of course, we have to take consensus mapping from all of us. जो भी protest site पे persistent हैं उनसे। तो I think by 7 or something today, 7 o'clock or 8 o'clock, we'll be able to form a committee delegation. और then we'll communicate to the administration, because administration भी बहुत tricks and ticks खेलती है हमें सबड्यू करने के लिए कि भाई आपके पास सहमति नहीं है, आप कैसे डेलीगेशन बना सकते हो। तो हम उनको दिखाएंगे आज कि हमारे पास सहमति है, हम कम्युनिकेट करेंगे बैरिकेडिंग के पास कि भाई हमारे पास सहमति है, आप देख लो हम अप्रूव्ड हो रहे हैं और हम आगे के लिए, क्योंकि हम अपने लिस्ट ऑफ डिमांड को पुलिस को नहीं देना चाहते हैं कि आप कराओ हमारे ब्याह। आप क्यों कराओगे? आप लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, आप क्यों कराओगे? ये तो आपके डोमेन में आता ही नहीं है। तो हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ एंड विल टेक रिटर्न अश्योरेंस। हमारा ऐसा नहीं है कि आप कल से कुछ ऐसा करा दो रॉकेट साइंस, हम वो नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमें रिटर्न अश्योरेंस चाहिए और चेंज इन एटीट्यूड चाहिए कि सच में यू हैव टेकन अस सीरियसली, यू हैव टू टेक अस सीरियसली नाउ। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कमेटी से ऑलरेडी मिल चुके हैं। आई मीन लाइक देयर वाज अ डेलीगेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो उस डेलीगेशन में ओल्ड राजेंद्र नगर के स्टूडेंट्स पार्ट नहीं थे, as much as I know. तो वो कौन स्टूडेंट्स थे जो वहां पर पहुंच गए थे? एक्चुअली में क्या हुआ कि पुलिस, आई डोंट नो पुलिस की क्या इंटेंशन रही होगी इसके पीछे। वो रैंडमली उनने कुछ स्टूडेंट को पकड़ा और वो लेके चले गए डेलीगेशन में। फिर बोला आपने बिट्रे करा है, क्योंकि क्राउड ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई तुम किससे पूछ के गए थे, तुमने हमारे डिमांड्स भी कोलेट नहीं किया। दैट वाज फर्स्ट और सेकंड डे। एंड सेकंड डे में तो वी हैड टू फॉर्म डिमांड्स बाय टेकिंग फीडबैक फ्रॉम पीपल, राइट? सो वी हैड नॉट इवन फिनिश्ड टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द पीपल। हाउ कैन यू गो टू द गवर्नर, राइट? वो चले गए एंड देन पुलिस को एक बहाना मिल गया कि भाई तुम बिट्रे कर गए। भाई आपने रैंडमली सेलेक्ट करके बस पे बिठाया सबको, हमने क्या, कौन सी बिट्रेल कर दी? हमने बिठाने का काम तो आपने करा। तो अब आपने ओनस हम पे डाल दिया कि अब आप अप्रूव करवाओ अपने आप को क्राउड से। ठीक है, हम कराएंगे, यू हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ आवर वीकनेस एंड एवरीबडी डज दैट बिकॉज राइट, वो पार्ट है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी का, वो पार्ट है, वो बहुत नेचुरली हम समझते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है, वो हम समझते हैं, वो पार्ट है, सब हम उसके पार्ट They want to dilute the movement so that the law and order is back on track. No, not the law and you are order not is causing any law and order problem, but the road needs to open up where students are इशू sitting. तो रोड की है ही नहीं। इशू तो रोड की, जब उन्हें ये दिख रहा है कि हमारे नंबर्स कम हुए हैं, बट उन्हें ये बहुत बड़ी मिसकंफ्यूजन है, वो बहुत कंफ्यूजन है उनको कि नंबर्स कम हो रहे हैं स्टूडेंट के तो प्रोटेस्ट डाई हो रहा है। अगर आपने हमारे डिमांड्स फुलफिल नहीं किए, ऑनलाइन एजुकेशन एडटेक तो ऐसे ही आ गया है। अगर एक बहाना मिल ही गया कि यहां पे सेफ्टी नहीं है, भाई साहब यहां पे सेफ्टी है ही नहीं, अगर हमें बहाना मिल गया कि यहां पे सेफ्टी नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन से, वी हैव टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ। एनीवे पीपल विल लीव, देन डू यू हैव anything special with ORN to advertise ORN as a student hub? Do you have? No. Answer to that That is will no. hurt the economy very badly. Exactly. And ORN की ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग अभी तो बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया में चल रहा है कि भाई कैसा जगह है ये। एक साइड में बहुत पॉज और एलीट जगह है और एक साइड में भाई क्या हो गया, ऐसी भी चीजें चल रही हैं। नहीं, मतलब उतना भी खराब नहीं है, कुछ इश्यूज हैं। हाँ, खराब तो नहीं है, ऑफ कोर्स खराब। जैसे अभी अपन ने पॉइंट आउट करा, ऐसी बात नहीं, फैसिलिटीज नहीं मिलती। दैट इज
one of the locations where girls are very, very safe. Exactly. Yeah. But yeah. Sure. there are outside elements who are coming in and creating problems that police needs to look Yeah, into. actually, this is a pause area. I know some good people who have supported me a lot of times over here. I know some And good not people. all the owners are negative and Ravan. Exactly. But पूरे सब ecosystem Yes, में आ गए. and not all the brokers are bad. Yeah. Sometimes broker also helps They- you a lot. yeah, they show against sympathy. the owners. Yeah. They sometimes not all mediate people, on your yes. behalf. They But there sometimes are few. communicate on your behalf. Yes, but there are few, and for them you need to create some regulations, some sort of law, Exactly. so that the interest of the children, interest of the students can be safeguarded. So it was very nice talking to you. Thank you so And much. you have provided a very good viewpoint of the aspirants, and I hope people will watch this episode and will come to know about what a UPSC student undergoes during the preparation, and at the same time what they are undergoing after the recent event which has occurred, a recent tragedy, we would say. Yeah. Thank you very much for coming Thank on you the so much. podcast, and Thank you so I much. wish you luck with the Lieutenant Governor. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.